So yesterday we were talking about different constants that we have, and we have learned that we have constants like not null. We have default. Not null means you cannot keep that value blank. Next is default constant. The meaning of default constant is you can provide a default value to the variable if the value for a particular variable is not defined. अगर किसी वेरिएबल के लिए कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की जाती है तो जो भी डिफ़ॉल्ट में लिखा होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू चली जाती है. यूनिक कांस्टेंट मींस you cannot keep duplicate value into that field. Primary key, if you want to make a key primary, then you can go with primary key. Next is foreign key. To define a foreign key using reference keyword. Check constant is used to define a condition, right? Like अगर हम कोई वेरिएबल, कोई जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था एज, इंटीजर लिया था, उसके बाद हम डिफाइन कर सकते हैं चेक age is greater than equal to 18. Okay, so if someone enters below 18, so it will cause an error because this cannot be done. So this thing we have already done, and how to add them we have already seen that how can we add a constant to a field. ये भी हमने कल डिस्कस किया था. तो मैं आज constants के बिल्कुल लास्ट में जा रहा हूँ, and आज हम जो है नेक्स्ट कमांड पढ़ने जा रहे हैं अपनी. हालांकि ये कमांड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिलेक्ट कमांड. सो एज वी नो, कल हमने एक नया टाइप का कमांड, एक कैटेगरी पढ़ी थी SQL एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और इसमें SQL नहीं DQL. कल हमने DQL पढ़ा था, डाटा क्वेरी लैंग्वेज, और हमने उसमें पढ़ा था कि SQL जो है सिलेक्ट कमांड को DQL के अंडर डालता है, राइट? तो मोस्टली DML में होती है बच्चों, बट राइटर टू राइटर इट डिपेंड्स. सो यू जस्ट हैव टू लर्न दैट DQL मीन्स डाटा क्वेरी लैंग्वेज. तो अगर आपको क्वेश्चंस कुछ ऐसे मिल रहा है कि सिलेक्ट कमांड कौन सी कैटेगरी में जाती है, तो आप DML ही लिखेंगे, बट अगर पर्टिकुलरली DQL का ऑप्शन आपको मिल रहा है तो गो फॉर DQL ऑप्शन. ओके, नाउ हाउ कैन वी वर्क विद SQL कमांड्स, SQL select command. So the syntax is select, then you specify for what column we want to display the data. So here it is written select column 1, column 2, column n. Like as many columns you want to define, you can write after select. Select name of the columns from table name. So we have done this. इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर हम अपने स्टूडेंट टेबल की बात करें तो हम बोल सकते हैं select s name, f name from student. Okay, so that will be an example of this command. अब यहाँ पे एक नया कीवर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है बच्चों. दिस इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट, राइट? सो आई एम राइटिंग अ कमांड select house from student. Okay, just do write in the chat box, if I issue this command and this student table has 4000 records, right? And we are assuming that all the records have value of house, right? All the record has value house. So if I write this command select house from student, how many records will be shown? How many records will be shown? You can write in the chat box. If I issue this command, how many records will be shown? Select house from student, and student table contains 4000 records. Okay, no response till now. So all the records will be shown, like 4000 records आएंगे, सारे के सारे record आ जाएंगे, right? सारे के सारे क्यों आएंगे? Because we are not specifying where clause कि कौन कौन से records को हमें display करना है. So all the records will come. I believe you are understanding this, right? If all 4 records will come, great. Students are writing answer. If all 4000 records will come, so we'll see. If I talk about my school, so
the values in all 4000 records will be Alaknanda, Bhagirathi, Janvi and Mandakini. So इस तरह से ये अलग अलग आएंगे, मतलब कुछ 4000 रिकॉर्ड आएंगे और यही चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेंगी इसमें. Now what a distinct keyword does? Distinct keyword will pick entries which are odd in the group, which are distinct in the group. So if I say select distinct house, select distinct house, so only 4 records will come, right? Only 4 records will come. First will say Alaknanda, second will say Bhagirathi, third will say Janvi and fourth will say Mandakini. Now what this distinct is doing, distinct actually picks the records which are unique. I'm sure you are getting value. If I am talking select distinct gender, right? So only M and F will come, right? थोड़े से प्रोग्रेसिव हो जाएं तो आजकल आप जान रहे होंगे, आप लोग शायद जानते हो कि अब टी भी आने लगा है, ट्रांसजेंडर भी आने लगे हैं, जेंडर के कॉलम्स में ये भी एक डाटा जाने लगा है. सो मैक्सिमम अगर टेबल की बात करें तो 2 ही ऑप्शन हमारे पास आते हैं, मेल और फीमेल, राइट? अगर हम उसको डिस्टिंक्ट करते हैं. लेकिन अगर हम डिस्टिंक्ट नहीं करेंगे तो एम एफ ऐसा ही चलता रहेगा. आई बिलीव आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा. वेयर क्लाउज आप जानते हैं कंडीशंस पुटिंग के लिए यूज़ किया जाता है. एंड और का पर्पस भी आप लोग जानते हैं, ये एग्जैक्टली एंड और वैसा ही है जैसे पाइथन में होता है, जो हम 2 कंडीशंस को स्पेसिफाई करते हैं. जैसे हमने कहा कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड जेंडर इज इक्वल टू एम, तो ये कुछ इसी तरह से होगा. एंड और आप लोग आई थिंक आप अच्छे से जानते हैं. ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है इन क्लाउज आ रहा है. इन क्लाउज का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए, ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, हमने लिखा सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर हाउस इन अलकनंदा कॉमा भागीरथी. ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार. अब उन बच्चों के नाम आएंगे, ठीक है, एस नेम था आई बिलीव, उन बच्चों के नाम आएंगे जिनके हाउस अलकनंदा और भागीरथी होंगे. ऑलराइट. इन क्लाउज का मतलब होता है और की कंडीशन. तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम और से लिखेंगे तो हम लिखेंगे हाउस इज इक्वल टू अलकनंदा और हाउस इज इक्वल टू भागीरथी, राइट? सो अगर आप ये इतना नहीं लिखना चाह रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप इन क्लाउज को यूज़ करें. इनके साथ नॉट भी यूज़ हो सकता है, ये भी मैंने आपको बताया था. जैसे अगर हम बोलते हैं हाउस नॉट इन अलकनंदा और भागीरथी, उस केस में अलकनंदा और भागीरथी को छोड़ करके जितने भी होंगे वो सारे हाउसेस के डेटा आपको दिखाई देगा. बिटवीन भी आपको बता दिया गया था. बिटवीन होता है रेंज के लिए, और बिटवीन में आप ध्यान रखेंगे कि बिटवीन में वैल्यू 1 और वैल्यू 2 नंबर होना चाहिए, राइट? तो जैसे हम बोलते हैं सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एडमिशन नंबर बिटवीन 1000 एंड 2500. ओके, सो वो बच्चे दिखाई देंगे जिनके एडमिशन नंबर 1000 से लेकर के 2000 के बीच में होंगे. इनका सिंटेक्स याद रखेंगे आप. ओके, लाइक आप लोगों को बता दिया गया था, पैटर्न मैचिंग के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे हमने लिखा था सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक. अब उसके बाद हमने वाइल्ड कार्ड के बारे में बात की थी. जैसे मैंने बोला MA%. ओके, तो जिनका नाम भी MA से शुरू होगा वो आपको दिखाई दे जाएंगे. पैटर्न मैचिंग के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को ऑर्डर बाय क्लाउज. ऑर्डर बाय जो है वो डेटा को अरेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में. ये आप एक कॉलम पे या एक से ज़्यादा कॉलम पे अरेंज कर सकते हैं. जैसे इफ आई एम सेइंग सेलेक्ट नेम
कॉमा सेक्शन कॉमा क्लास फ्रॉम स्टूडेंट। अगर मैं क्वेरी को इतना ही छोड़ देता हूं बच्चों, तो जिस ऑर्डर में आपने डेटा एंटर किया होगा उसी ऑर्डर में नाम, सेक्शन और क्लास आ जाते हैं। अब मैंने यहां लिखा ऑर्डर बाय क्लास। अब यहां पे ध्यान से समझना, अगर मैं लिख रहा हूं ऑर्डर बाय क्लास, तो मेरे पास सारी क्लासेस जितनी भी हैं, मान लीजिए फर्स्ट से लेकर के 12 तक की क्लासेस हैं, तो ये सारे के सारी क्लासेस मेरे पास आ जाएंगी और इनका ऑर्डर जो होगा वो क्लास के अकॉर्डिंग होगा, क्लास के अकॉर्डिंग। लेकिन पॉइंट ये है कि क्लास के अकॉर्डिंग अगर होगा तो फर्स्ट के सारे बच्चे एक साथ, सेकंड के सारे बच्चे एक साथ और थर्ड के सारे बच्चे एक साथ, इस तरह से हमारा डेटा डिस्प्ले होगा। अब अगर हम ये चाहते हैं कि जो भी क्लास के बच्चे आ रहे हैं, मान लीजिए क्लास 1 के सारे बच्चे हैं, उनके बाद भी, क्योंकि देयर विल बी से 300 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1, सिमिलरली 300 स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकंड, राइट। नाउ व्हाट वी वांट कि जब वो 300 बच्चे आए उनके अंदर भी कोई अरेंजमेंट हो, क्लासेस के अकॉर्डिंग तो वो अरेंज हो, उसके बाद भी कोई अरेंजमेंट हो। तो मैंने लिखा ऑर्डर बाय क्लास कॉमा सेक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? The data will be arranged according to the class. If classes are similar for 300 students of class 1, for 300 students of class 1, we are arranging them on the basis of their sections. पहले क्या होगा, randomly sections आ रहे होंगे, ये उस पर डिपेंड करेगा कि जो डाटा आपने डाला है, जो डेटा आपने प्रोवाइड किया है, वो डेटा कैसे काम कर रहा है। ऑलराइट, कैसे काम कर रहा है मतलब जिस ऑर्डर में उसको डाला गया है वो उसी ऑर्डर में दिखाई देगा। अब हमने क्या किया, पहले क्लास के अकॉर्डिंग हो, फिर सारे सेक्शंस के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा इसमें सारे सेक्शंस के बच्चे एक साथ आ जाएंगे। इसके बाद भी मान लीजिए आप लोग चाहते हैं कि कोई अरेंजमेंट हो, तो आपने कहा उसके बाद नेम के बेसिस पे अरेंजमेंट हो। तो सबसे पहले क्लास के बेस पे, फिर सेक्शन के बेस पे, फिर नेम के बेस पे। इसमें भी अगर आप चाहें तो इनको आप अलग अलग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, जैसे क्लास स्पेस डिसेंडिंग लिख दीजिए, सेक्शन को ऐसे ही छोड़ दीजिए, नेम को भी डिसेंडिंग कर सकते हैं या असेंडिंग कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। आपको हर फील्ड के साथ ऑर्डर लिखना पड़ेगा। एंड इफ यू आर नॉट स्पेसिफाइंग ऑर्डर, देन अगर आप ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही डेटा मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम बार बार गलती करते हैं, 12th के बच्चे भी इसको बार बार गलत करते हैं, अगर कहीं पर ऑर्डर बाय क्लाउज और वेयर क्लाउज, they all are coming together, where and order by clause अगर आ रहे हैं साथ में, तो आप where को पहले लिखेंगे, राइट। इसको आपको याद रखना है कि आप where clause को पहले लिखेंगे, order by clause को बाद में लिखेंगे। ऑलराइट, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, क्योंकि हमने where पहले पढ़ा है इसलिए हम where को पहले लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, अब ये काम कैसे करता है, चलिए मैं इसको लिखता हूँ, सिलेक्ट नेम सेक्शन क्लास फ्रॉम स्टूडेंट where gender is equal to male, order by class section and name। तो अगर मैं इस क्वेरी को लिख रहा हूँ तो हमारी जो डेटाबेस है उसमें से केवल बॉयज का डेटा क्लास, सेक्शन और नेम के अकॉर्डिंग अरेंज होगा। जब हम वेयर नहीं लिख रहे थे, वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल नहीं लिख रहे थे, तो सब बच्चे आ रहे थे। लेकिन जब हमने लिखा वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल, सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर बॉयज, हु आर मेल्स, दे विल बी अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासेस, सेक्शंस एंड नेम, राइट। सो दिस इज ऑर्डर बाय क्लाउज। नाउ नेक्स्ट इज ग्रुप बाय। ये आप लोगों को बताया नहीं गया था और ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है जब भी हम क्वेरी लिखते हैं। यहाँ तक कोई भी क्वेरी है बच्चों, ऑर्डर बाय तक, तो आप लिख लीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ 1 मिनट, आई एम चेकिंग टेक्स्ट बॉक्स। अगर कोई क्वेरी है तो मैं उसको सॉल्व करूँगा, उसके बाद आई एम एक्सप्लेनिंग ग्रुप बाय। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग कमांड्स taught before this order by, then you can write, otherwise next हम बात कर रहे हैं ग्रुप बाय की। बहुत गड़बड़ होती है इसमें, ध्यान से समझना। चलो, नो क्वेरी। नाउ ग्रुप बाय क्लाउज। ग्रुप बाय किस लिए यूज किया जाता है? अभी हमने बात की थी बच्चों डिस्टिंक्ट की।
एंड द पर्पज ऑफ डिस्टिंक्ट इज टू पिक नॉन यूनिक रिकॉर्ड्स या नॉन यूनिक डेटा। जैसे अगर हम लिखते हैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, मान लीजिए सिटी नाम का कोई फील्ड है, राइट? तो सब बच्चों के सिटीज़ दिखाई देंगे जिनके सिटीज़ डिफरेंट होंगे, यानी 2 बच्चे अगर मान लीजिए ऋषिकेश से आ रहे हैं तो उसमें से एक ही का रिकॉर्ड आएगा केवल, राइट? वो कौन सा आएगा? वो पहला वाला, जिसका भी डेटा पहले होगा वो आ जाएगा। अब पॉइंट ये आता है कि ग्रुप बाय क्या करता है। ग्रुप बाय देखने में एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे कि डिस्टिंक्ट काम करता है, लेकिन इसमें बहुत अंतर होता है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। काफ़ी डिफरेंस कैसे होता है? मैं एक क्वेरी लिख रहा हूँ, सिलेक्ट, और यहाँ पे क्या दिखाना है इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, नो वेयर, आई एम रिमूविंग वेयर, पहले सीधा सीधा पढ़ते हैं। तो हमारा हुआ सिलेक्ट डैश फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय हाउस, ओके। अब ग्रुपिंग का पर्पस क्या है पहले तो ये समझो। डिस्टिंक्ट में क्या हुआ था, इफ देयर वर 4000 records belonging to 4 different houses, 4 different categories, so out of those 4000 only 4 records will be kept in the memory. दोबारा सुनिए, out of those 4000 records only 4 records, because they are distinct, will be kept in the memory and they will be shown as the output. तो हमारी इस समय रैम में कितने रिकॉर्ड पिक हुए हैं? 4000 में से केवल 4। एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ पिकिंग दोज 4000? द आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज दोज 4 रिकॉर्ड्स आर डिस्टिंक्ट। अगर कोई नया हाउस होता, 5 हाउस होते तो 5 रिकॉर्ड आ जाते, राइट? अब यहाँ पे क्या होता है ग्रुप बाय में? ग्रुप बाय में भी ग्रुपिंग अगर हम करते हैं, हाउसेस के अकॉर्डिंग अगर हम ग्रुप करते हैं, तो भी हमारे पास 4 ही ग्रुप बन रहे हैं, राइट? हाउस में भी 4 ग्रुप बन रहे हैं, अलकनंदा, भागीरथी, जानवी और मंदाकिनी, 4 हाउसेस बन रहे हैं। लेकिन रिकॉर्ड जब पिक होता है, यानी जब प्रोसेसिंग होती है रिकॉर्ड्स पे, तो पूरे के पूरे 4000 पे रिकॉर्ड पर प्रोसेसिंग होगी, यानी इस समय 4000 के 4000 रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट किया जाता है। तो अब इसे यूज़ कब करना है? ग्रुप बाय को आपको तब यूज़ करना है जब आपको एक सर्टेन ग्रुप पर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन अप्लाई करनी हो। आपको ग्रुप बाय को तब यूज़ करना है जब आपको किसी एक सर्टेन ग्रुप पर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन अप्लाई करनी हो। जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट काउंट, ये वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, सिलेक्ट काउंट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टार ब्रैकेट में। सिलेक्ट स्टार नहीं लिखा बच्चों, मैंने लिखा है सिलेक्ट काउंट स्टार, कॉमा हाउस भी लिख दिया इसके साथ, फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय हाउस। अब इससे क्या होगा? मान लीजिए 1200 बच्चे अलकनंदा के हैं, तो सबसे पहले लिखा आएगा 1200, क्योंकि हमने काउंट स्टार पहले लिया है, फिर हाउस। मान लीजिए 1350 बच्चे भागीरथी के हैं, मान लीजिए 1100 बच्चे जानवी के हैं, और मान लीजिए 1400 बच्चे मंदाकिनी के हैं। तो हर हाउस की काउंटिंग आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी, राइट? बिकॉज हमने काउंट स्टार लगाया है। तो हमने लिखा है काउंट स्टार फ्रॉम हाउस, सेलेक्ट काउंट स्टार, कॉमा हाउस, फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय हाउस। अब सबसे पहले क्या होगा? ग्रुपिंग होगी। सो ऑल अलकनंदा विल बी ग्रुप्ड, सारे अलकनंदा एक साथ, उनकी काउंटिंग, और क्योंकि आप अलकनंदा के साथ काम कर रहे हैं तो हाउस भी डिस्प्ले करेंगे। इसी तरह से फिर काउंट ग्रुपिंग होगी भागीरथी वालों की, फिर उनकी काउंटिंग आएगी, ऐसे ही जानवी के लिए और ऐसे ही मंदाकिनी के लिए। आई बिलीव आपको क्लियर हुआ होगा ये। आप इसमें काउंट की जगह और क्या लगा सकते हैं? जैसे इस एग्जाम्पल में सम लगाया हुआ है, तो हम सम भी कर सकते हैं, राइट? एज्यूम कर लो एक टेबल, मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, सिलेक्ट नेम सम ऑफ टोटल मार्क्स ग्रुप बाय नेम।
कोई रफ आइडिया बताओ जरा मुझे लिख करके या बोल के कि इसमें क्या होगा, इस वाली क्वेरी में क्या होगा। आप बोल भी सकते हैं, आई एम लिसनिंग, या लिख के भी बता सकते हैं। सिलेक्ट नेम कॉमा सम टोटल मार्क्स ग्रुप बाय, यू कैन एज्यूम अ टेबल जिसमें बच्चे का नाम भी है और उसके टोटल मार्क्स भी है। टोटल मार्क्स का मतलब उसने 4 सब्जेक्ट्स, मतलब उसके कुछ ऐसा है कि एग्ज़ाम 1 में कितने मार्क्स हैं, एग्ज़ाम 2 में कितने मार्क्स हैं, एग्ज़ाम 1 के टोटल मार्क्स, एग्ज़ाम 2 के टोटल मार्क्स, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो फाइनली क्या आएगा इसका रिजल्ट अगर हम निकालते हैं कुछ ऐसा आएगा बच्चों, हर बच्चे के जितने भी टोटल मार्क्स हैं उन सबका सम, हर बच्चे का, हर बच्चे के ग्रेड, हर बच्चे के टोटल मार्क्स का सम आ जाएगा। लेकिन अगर 2 बच्चों के नाम सेम होंगे तो उन दोनों के नाम जुड़ जाएंगे। मतलब क्या हुआ, जैसे पूरे स्कूल में मान लीजिए आयुष शर्मा करके 5 बच्चे हैं, तो जब सम आएगा बच्चों तो 5 आयुष शर्मा का सम एक साथ कैलकुलेट हो जाएगा। ऑलराइट, और ऐसे ही जिनके भी नाम डुप्लीकेट में होंगे उनके सम एक साथ आएंगे, जिनके नाम यूनिक होंगे ऑब्वियसली उनका सम अलग आएगा। तो इंफॉर्मेशन विल नॉट बी सम मीनिंग, विल नॉट हैव सम मीनिंग, बट स्टिल देयर इज एन आइडिया ऑफ ग्रुप बाय क्लाउज। Okay, now next command, having clause. Having clause is similar to where clause. CLAUSE. Having clause is similar to where clause. Okay, अब देखो यहाँ पे क्या है, where clause भी है और having clause भी है। where clause works on the table. where clause काम करता है टेबल पे, और having का मतलब भी वही होता है, where ही होता है एक तरह से, लेकिन having तब यूज किया जाएगा अगर आप लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं। अगर आपकी क्वेरी में ग्रुपिंग नहीं हो रही है तो आप हैविंग क्लाउज को यूज़ नहीं कर सकते हैं। राइट, आप हैविंग क्लाउज को यूज़ नहीं कर सकते हैं अगर आप ग्रुपिंग नहीं कर रहे हैं। सो ग्रुप और हैविंग दोनों एक साथ आते हैं। अब जब आप कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कंडीशन लिखी ग्रुप बाय सो कॉलम, अब उस कॉलम के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई कंडीशन डिफाइन करनी है तो आप हैविंग के साथ डिफाइन करेंगे। राइट, इसके लिए कोई ऑथेंटिक डेटा हम टेबल से लेंगे आगे, क्योंकि इन सबके एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिए हुए हैं आगे। तो फिलहाल मैं हैविंग वाले ऑप्शन को छोड़ रहा हूँ, बाकी ये हमारे यहाँ तक हो गए हैं। सिलेक्ट काउंट भी हो गया है, वेयर कंडीशन, दिस इज़ वेरी सिंपल। चलिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ स्क्रीन। क्रिएट टेबल, ये आप लोगों को आता है। प्राइमरी की, ये हमने आपको कल बता दिया था। किसी टेबल को ड्रॉप करने के लिए, ड्रॉप करने का मतलब होता है बच्चों डिलीट करना है अगर किसी टेबल को, तो उसके लिए कमांड होती है ड्रॉप टेबल और उसके बाद टेबल का नाम। इससे हमारी जो टेबल है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगी। ऑल्टर टेबल के बारे में भी हम बात नहीं कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। ट्रंकेट टेबल एक ऑप्शन होता है जिससे आपकी टेबल, आई हैव टू चेक कि ड्रॉप में और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस होता है। ट्रंकेट भी मेरे ख्याल डिलीट करने के लिए होता है, दैट आई हैव टू चेक। इंसर्ट आप लोगों को बता दिया गया है। ऑल्टर की कमांड में भी आपको नहीं बता रहा हूँ, ये इसको बाद में करेंगे। अपडेट भी मैंने नहीं बताया है, डिलीट नहीं बताया है। क्रिएट डेटाबेस बता दिया गया है। कुछ इसमें ऑर्डर का एक डिफरेंस है, जो ऑर्डर हम लेते हैं नॉर्मली पढ़ते समय वो इसमें नहीं है। यूज़ आप लोगों को बता दिया गया है। कमिट रोल बैक की आपको ज़रूरत नहीं है, कोडिंग में इसको जनरली यूज़ किया जाता है। ओके, इसके बाद डेटा टाइप्स, ये सब आप लोगों को बता दिए गए हैं। मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, ये वाला डॉक्यूमेंट, आप लोग चाहे तो इससे पढ़ सकते हैं कौन कौन से डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं हमारे पास। वेयर, कैर, कैर, बाइनरी का डाटा है, अलग अलग डेटा है।
सिंस इट इज़ अ कंप्लीट फाइल, सो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारे सिलेबस के लिए ज़रूरी नहीं है। ये कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बताया गया है, कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सिलेक्ट कमांड को टेबल के साथ ही यूज़ करें बच्चों, हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे लिखा है सिलेक्ट 10 × 20 तो 200 आंसर आ जाता है। बेसिक कैलकुलेशंस अगर आपको करनी है, ये हमारे ऑपरेटर्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ओके, ये कमांड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, सारा डेटा आ गया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सैलरी इज इक्वल टू 5000, सैलरी इक्वल टू 2000, सैलरी इज नॉट इक्वल टू 2000। नॉट इक्वल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, दोनों साइंस का कॉम्बिनेशन करके। इसके बाद लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 65,000, वेरी मच सिंपल, सेम। अच्छा, ये वो ऑपरेटर्स हैं जो हमने पढ़ा है। बिटवीन हमने पढ़ लिया है, इन हमने पढ़ लिया है, लाइक पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। बाकी दो हमने नहीं पढ़े हैं, चलो इनको मैं करा दूंगा। एंड पढ़ लिया है हमने। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ये हम पढ़ चुके हैं। देखें अब नया क्या आ रहा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 एंड सैलरी 6500, तो एंड और को भी हम यूज कर चुके हैं। ओके, नाउ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एज इज नॉट नल, ये कुछ अलग है। अगर हमने कोई ऐसा फील्ड दिया है बच्चों जिसमें हम नल डाल सकते हैं, राइट, नल अलाउड है जिसमें डालना, उसके साथ ये क्वेरी कैसे काम करेगी ये चेक करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर एज इज नॉट नल, यानी वो सारा डेटा दिखाया जाएगा जहां पर वैल्यू नल नहीं है। और अगर हम इस नॉट को हटा देते हैं तो ये वो सारा दिखाएगा जहां पर एज की वैल्यू नल है, यानी जहां पर एज की वैल्यू डाली नहीं गई है। आप देख सकते हैं नॉट नल होने की वजह से सारी एजेस आ रही हैं, लेकिन अगर इसको इज नल कर दिया जाएगा, एज इज नल, तो ये वो वैल्यूज दिखाएगा, यानी वो रिकॉर्ड्स दिखाएगा जहां पर एज की वैल्यू ब्लैंक है, कुछ भी नहीं डाली गई है। ये आप लोगों को बता दिया गया है। वेयर नेम लाइक को लिखा है, इसमें तो कोमल का डेटा आ गया है। ऐसे ही एज इन 25 और 27, ये भी आप लोगों को बता दिया गया है, तो वही डेटा आएगा जिनकी एज 25 और 27 होगी। बिटवीन भी आप लोगों को बता दिया गया है। तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, राइट। सिलेक्ट एज फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एग्जिस्ट, अब ये एग्जिस्ट मैंने आप लोगों को अभी नहीं बताया, तो कल जो है हम लोग एग्जिस्ट पढ़ेंगे, राइट। आज हम यहीं तक छोड़ देते हैं। आज है 16 तारीख 4/2021। कोई भी क्वेरी है यहाँ तक के डेटा के लिए तो आप पूछ सकते हैं।